السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن 9 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن 9 میں آج ہم ویکیبلری اور انگلش پویم پڑھیں گے اور سمجھیں گے ٹرانسلیٹ کے ساتھ۔ آج میں نے تھوڑی سی امپروومنٹ کی ہے، اس طرح کہ آج میں پویمز صرف نہیں دے رہا بلکہ پویمز میں ویکیبلری جو یوز ہو رہی ہے اس کو بھی الگ سے مینشن کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں آپ اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ اس پویم کو، یہ پویم میری فیوریٹ ہے تو اس وجہ سے میں آرام سے پڑھوں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں آپ لوگ، SORROW، سورو، سورو، غم۔ یہ کبھی میرا نک نیم ہوا کرتا تھا، بٹ نک نیم مینس کہ بہت میں پسند کرتا تھا یہ نک نیم بنانا نیٹ پر۔ سورو، غم، کوپ، مقابلہ کرنا، سورو، غم، کوپ، مقابلہ کرنا، لڑنا جھگڑنا۔ گلی، 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 لطف، خوشی والا جو لطف ہوتا ہے نا وہ۔ سائلنس، 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 خاموشی۔ فو، 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 اس میں ای سائلنٹ ہو جاتا ہے، ایچ کی آواز آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دشمن کو کہتے ہیں فو، اینیمی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو، اس سے پہلے اگر آپ نے لیسن سنا ہو تو میں نے کہا تھا جو پویمز میں انگلش یوز کی جاتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ استعمال کی جاتی ہے، تھوڑی ایسے لفظ یوز کیے جاتے ہیں جو آپ نے سنے نہ ہو، جو دیکھے بھی نہ ہو اور جو پڑھے بھی نہ ہو۔ اسی لیے یہ میں پویم کو پریفر کرتا ہوں کہ پویمز کو سمجھ لیں، گانوں کو سمجھ لیں، اور یو کین سے ایوری تھنگ، جو بھی ہے ہر چیز آنی چاہیے انسان کو۔ فلو، 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 اڑنا۔ اچھا، اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ نزلے والا فلو ہے یا یہ ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ FLY فلائی ہوتا ہے، اس کی یہ سیکنڈ فارم ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے فلو نزلہ اور ایک ہوتا ہے فلو اڑنا۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو جملے کے مطابق سمجھیں۔ صحیح ہے؟ فال ڈاؤن، فال ڈاؤن، فال ڈاؤن، فال ڈاؤن، گرنا۔ فار اوے، فار اوے، فار اوے، بہت دور۔ سراؤنڈ، 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 گھیرنا، گھیرنا۔ ٹائٹ، جکڑا ہوا یا جکڑنا یا پھنس جانا۔ تو یہ تھی پویمز کی جو ویکیبلری۔ اب یہ تھی جو موسٹ مشکل تھی، وہ میں نے، جو ڈیفیکلٹ تھی وہ میں نے آپ کو یہاں لکھ کے مطلب بتا دیا۔ اب ہم پویم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں پویم کو میں پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، کیونکہ پہلے پڑھیں گے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورو اینڈ ٹیئرس۔ اس پویم کا نام کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ہیڈنگ یہی ڈالی، سورو اینڈ ٹیئرس، غم اور آنسو۔ مجھے ٹائٹل بنانا بڑا پسند ہے، تو میں بھی پاسبل شاید آپ کو
बुरा लगे, बट ये ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया। अब मैं रीड आउट करता हूँ, सबसे पहले रीड करता हूँ, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करूँगा। रीड करते वक्त आप ज़हन नशीन रखें, आप अपनी रीडिंग को भी थोड़ा सा अच्छा करें, ताकि देखें किसी चीज़ में कमी ना रहे। इतनी मेहनत करने का जब भी फ़ायदा हो कि आप पूरी तरह मेहनत करें। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ में आप मुकम्मल हों। मुझे अक्सर एक एहसास कमतरी रहती थी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ, बट रीडिंग में रीडिंग में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी। स्पीकिंग में नहीं होती थी, बट रीडिंग में या पोएम्स में जो यू कैन से कि इंग्लिश लिखी होती थी, उसको मैं रीड आउट करता था। तो उसमें जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ है फैलोज, तो मैं उसको फॉलो पढ़ देता था। इस तरह थोड़ी सी मिस्टेक्स होती थी, जो मुझे हमेशा एक दिल पे बोझ था कि मैं इसको सही करूं, पर टाइम नहीं मिलता था। तो अब मुझे पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले उसकी सही प्रोनाउंसिएशन तो सुनूंगा, फिर ही आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलती मेरी साइड से हो। अगर हो जाए तो फिर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। मे भी पॉसिबल आपके बताने से मैं उसको ठीक कर लूँ। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं जब भी उससे इंग्लिश में बात करता तो वो आगे से बोलता भाई यार। मैं उसको एक लफ्ज़ बोला था, मुझे अभी भी याद है, ब्रदर। तो उसने बोला भाई तू अपनी लफ्ज़ की अदायगी को सही कर। बेशक तुझे फुल इंग्लिश बोलना आ गई, लेकिन लफ्ज़ की अदायगी सही जो है ना, वो तुम्हें नहीं आती। मैंने बोला क्यों? बोला ब्रदर नहीं होता, ब्रदर होता है। ब्रदर, ओ की आवाज़ नहीं आती, ए की आवाज़ आती है। तो ये चीज़ ऐसी है क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि वहाँ पे हाई लेवल स्कूल से पढ़ा, वो लेवल, तो इस वजह से भी मे भी पॉसिबल कि उसमें ये वीकनेस नहीं थी, पर मुझ में थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीकनेस आप में भी ना रहे। क्योंकि जब कोई चीज़ सीखे, हमें ये लैंग्वेज सीखते हुए सिर्फ ये कहा जाता है सिर्फ ज़बान आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। अरे भाई, उस बोलने का क्या फ़ायदा जो तुम बोलो तो पाकिस्तानी ज़बान में बोलो कि लफ्ज़ की अदायगी ख़राब करके बोलो। सो मे बी पॉसिबल मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मिस्टेक कम ही करूं, क्योंकि मिस्टेक तो हो जाती हर किसी से, लेकिन मेरी कोशिश है ना हो। क्योंकि ये जो ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, जब तक आप किसी को करेक्ट ना करें, किसी को बताएं नहीं, तो किसी को पता नहीं चलता। और ये ऐसी चीज़ होती है, ये बचपन से मिल जाए तो बंदा सीख लेता है। जवानी में जाके बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन चीज़ों पे, जब जाके ये चीज़ें सही होती हैं, या आप ऐसे माहौल में बैठें जहाँ ये चीज़ें बोली जाती हैं, तो जब जाके ये चीज़ें सही हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। माई sorrow left me alone, my sorrow left me alone to cope with my fear, to cope with my fear. My heart told me to hear the silence outside me. I search for joy and glee, but I found nothing except only me. आगे भी है, परेशान नहीं हो। My friends, fellows, and my foes surrounded me so tight and took me on a flight far away from the ground
I flew. My tears fell down and there was no one to see. अब शुरू करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। पहले ही इसका मैं हेडिंग्स बता चुका हूँ। सौरो गम को कहते हैं, टेयर्स आंसू को कहते हैं, एंड और, तो बना ये है गम और आंसू। अब पहली लाइन को ट्रांसलेट करते हैं हम। माई सौरो लेफ्ट मी अलोन, मेरे दुखों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे दुखों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। To cope with my fear, to cope with my fear, मुकाबला करने के लिए अपने खौफ से, डर से। फेयर कहते हैं डर को। माय फेयर, ये वो वाला फेयर नहीं है जो FA जो आप कॉपी में लिखते हैं, ये खौफ, डर के लिए इस्तेमाल करने वाला फेयर है। टू कॉप विद माई फेयर, मुकाबला करने के लिए अपने दुखों से। अगर हम पहली लाइन देखें, मेरे गमों ने अकेला छोड़ दिया, मेरे गमों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुकाबला करने के लिए मेरे खौफ से, मेरे डर से। माई हार्ट टोल्ड मी टू हियर, मेरे दिल ने कहा मुझसे कि सुनो। द साइलेंस आउटसाइड मी, द साइलेंस आउटसाइड मी, खामोशी बाहर की, मेरे बाहर जो खामोशी है, मेरे दिल ने कहा उसे सुनो। I search for joy and glee, I search for joy and glee, मैं ढूंढता रहा खुशियाँ और, मैं ढूंढता रहा खुशियाँ और, मैं ढूंढता रहा खुशियाँ और। सॉरी, यहाँ शोर बहुत हो रहा है इसलिए। मैं ढूंढता रहा खुशियाँ और लुत्फ, बट आई फाउंड नथिंग, बट आई फाउंड नथिंग, बट आई फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। एक्सेप्ट ओनली मी, सिवाय मेरे, सिर्फ मेरे अपने अलावा। 3 लाइनों की ट्रांसलेट करते हैं, बल्कि 6 लाइनों की करते हैं। मेरे दुखों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुकाबला करने के लिए मेरे खौफ से। मेरे दिल ने कहा सुनो, खामोशी बाहर की। मैं ढूंढता रहा खुशियाँ और लुत्फ, बट लेकिन कुछ भी ना मिला सिवाय मेरे अपने। मुझे कुछ भी ना मिला मेरे सिवा। My friends, fellows and my foes, मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों। Surrounded, घेर लिया, मी मुझे, सो टाइट, इस तरह के जकड़ गया, बहुत ज़्यादा, यू कैन से बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस गया। इस तरह घेरा कि बहुत बुरी तरह फंस गया, निकलने का कोई रास्ता ना रहा। And took me on a flight, and took me on a flight, और मुझे बिठा दिया गया। फ्लाइट की स्पेलिंग सही नहीं है, मैंने
देखी नहीं, सॉरी, एंड टुक मी ऑन अ फ्लाइट, और मुझे बिठा दिया या मुझे जहाज पर ले गए या मुझे जहाज पर बिठा दिया। फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड आई फ्लू, मैं उड़ता रहा था या मैं उड़ता रहा और दूर होता चला गया ज़मीन से। ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को। My tears fell down and there was no one to see. My tears fell down and there was no one to see. मेरे आंसू गिरते रहे थे और कोई भी ना था देखने के लिए, कोई भी नहीं देख सका था, मेरे आंसू गिरते रहे। ये थी पोयम हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझा होगा। इससे कोई मॉरल तो नहीं मिलता हमें, लेकिन कभी कभी हमें इंग्लिश सीखने के लिए हर चीज़ को ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग एसएसटी को ट्रांसलेट करने लग जाए तो वो अलग बात है कि नहीं होगी, क्योंकि वो बिजनेस लाइन थोड़ी सी अलग विकेबलरी होती है उनकी, हर चीज़ में थोड़ी सी अलग विकेबलरी इस्तेमाल होती है। तो बराए मेहरबानी पहले विकेबलरी बिल्डअप करें, उसके बाद कोशिश करें, या जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी विकेबलरी सारी निकाल लें ताकि आपको ट्रांसलेट करने में मुश्किल ना हो। तो आज की अच्छी बात भी सुन लेते हैं। कभी भी अपने दुख इंसानों से ना शेयर करो। ये मजाक लगेगा या यू कैन से अजीब लगेगा कि मेरा अब एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मेरा अपना यकीन हो गया है कि इंसानों से कभी दुख शेयर ना करो। रोना आए रब के हजूर सजदे में गिर जाओ। रोना आए तो किसी के सामने मत रो, क्योंकि सामने रो कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो चीज़ भी नहीं जिसके लिए आप रोते हो। हाँ, लेकिन अल्लाह के सामने रो, शायद आपको सब कुछ मिल जाए, वो चीज़ भी मिल जाए जिसके लिए आप रो रहे हो। लेकिन ये सोच के मत रो कि अल्लाह मेरे रोने पे देगा। ये सोच कर रो कि मेरा अल्लाह है मेरे दुख सुनने वाला, मेरे दर्द सुनने वाला, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। हर दिल में लाखों दर्द है, ज़रूरी नहीं जो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वो खुश है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हंसते हैं लेकिन उनका दिल रो रहा होता है, लेकिन आप नहीं पहचान सकते कि उनके दिल में कितना दुख है, कितना दर्द है, किस वक्त से गुजर रहे हैं। वो शो भी नहीं करते, ऐसे बहुत से लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि आप रोने को छोड़कर अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। अगर रोना आए तो नमाज पढ़ लें, इबादत में लग जाएं और वहाँ रोएं। अपने रब को राज़ी करने के लिए रोएं, अपने रब को खुश रखने के लिए रोएं। हम सबको बोलते हैं, इंसानों से तो मैं कहता ही हूँ कि प्यार करो, लेकिन मोहब्बत का इजहार अपने रब से भी करो जिसने तुम्हें बनाया है। अपने माँ बाप से करो,
جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تو شاید زندگی میں تمام خوشیاں تمہیں مل جائیں۔ میں امید کرتا ہوں مجھے اپنی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ www.englishcourse.tk English-language-online.blogspot.com۔ اللہ حافظ۔